Namaste and welcome to this exciting episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Understand, English is a language of pronunciation. So there are many people in America who make fun of English language of other countries. And same happens in Australia, UK, or even in India. सो इट्स ए लैंग्वेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इसलिए हिंदी में ही बात हो तो बहुत भी अच्छा लगेगा आज. सो वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, वी ऑल लव हिम. तो आज आए हैं और मेरे लिए भी बड़े आदरणीय हैं. लेट अस वेलकम श्री संजय दीक्षित. Namaste, namaste, namaste Aditya ji, namaste all the viewers. ऑल रिलीजन द सेम. अगर आपने बुक नहीं खरीदी है, यू मस्ट बाय दैट बुक. अभी रिलीज हुई थी एंड आज उसी के एक बुक के एक टॉपिक पे हम लोग जाएंगे जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. नबातियन, मेंडियन और जोरास्ट्रियंस. और अब जोरास्ट्रियंस के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि महाभारत में नाम उस एरिया का पारसी का आता है और मॉडर्न नाम जोरास्ट्रियंस है. पता नहीं कहाँ से यूरोपियन हिस्टोरियंस नाम रखते हैं, कौन सा चीज उठाया, कहाँ से नाम रखा. तो बिफोर वी बिगिन विद, संजय दीक्षित की बुक है पेज 105, उस पे चैप्टर पे देख भी सकते हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ Yes, this is the book. This is the book, as you can see. Page 105, as he says. Okay, page 105. I have also opened it. तो सबसे पहले इनके नाम का ओरिजिन भी थोड़ा बताइएगा. नबातियन किसको बोलते हैं ये लोग, और तो who they call नबातियन, इस तरह का आपका कुछ रिसर्च है तो उसमें बताइएगा कि what, how do they put the names. कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो Actually, I haven't gone into the etymology as much as I've gone into their philosophy. So etymology, I think I'll avoid. Zoroastrian, of course, we know it comes from Zarathustra. Zarathustra से वो आता है, वहाँ से Zoroastrian है. और वैसे जो है वो चैप्टर है 10, चैप्टर 14, पेज नंबर 105 of this book. This is mainly written to show that there is nothing unique in Abrahamism, जिसको हम Abrahamic religions कहते हैं. जो Abrahamic religions के basically 4 elements हम कह सकते हैं. There are 4 elements that characterize the Abrahamic religions, and that is they have a book and they have a prophet, and they have this what is called, they have the book, they have the prophet, they have the message, and they have the last day of judgment. ये 4 चीजें जो हैं ये, या you can say कि message के साथ they have the book, the prophet, then they have the Satan, and then they have the last day of judgment. तो वैसे तो कुरान में है, I think it is 4.98, that says कि those who do not believe in the book and the prophet and the last day, that is आखिरत जिसको बोलते हैं उर्दू में, आखिरत और क़यामत, और as in Bible, the last day of judgment, also called apocalypse, or what else it is called in Christianity. There's so many names for the last day of judgment. So the day of apocalypse, all these are the characteristics of Abrahamic religions. तो लोग जो ये सोचते हैं कि भाई this is the revealed word, the book is the revealed book, ये सारा का सारा जो है वो शुरुआत जो है इसकी ये Zoroastrianism से ही होती है. Zoroastrianism, the one God or the only God. हमने तो इसमें लिखा है, this book I have contended that there is nothing called the one God. It is actually the only God. When they say one God, monotheism की बात करते हैं. Monotheism का मतलब actually monotheism का मतलब one God नहीं होता है. One God is monism. Monotheism का मतलब होता है that you worship my only God. बस ये मेरे कल्ट का जो है, he is the boss and you will worship only him, and he himself is so jealous. 10 commandments में लिखा हुआ है ना, the jealous God. 10 commandments में लिखा हुआ है, पर मैं अपनी तरफ से थोड़ी बना के
सुना रहा हूँ। वो आपको रिवील करूँ, 10 कमांड्स चोरी का है, वो भी ग्रीक फिलोसफी से आया है। नॉर्मन डेविस की पुस्तक में जो ओरिजिनल लैटिन में 10 कमांडेंट थे वो इनके बने बाद में। हाँ बिल्कुल। तो वो सारी चीजें जो है उसमें, वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से। मैं बताता हूँ कैसे होती है शुरुआत ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से। वो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से शुरुआत ऐसे होती है कि if you read the Rigveda, in the Rigveda you have the Battle of 10 Kings. तो बैटल ऑफ 10 किंग्स क्यों होती है? बैटल ऑफ 10 किंग्स इसलिए होती है कि सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, दैट इज देयर इज ओनली वन ब्रह्म, दैट इज वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दैट इज वन सीड, एंड एवरीथिंग एल्स इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम दैट सीड। उसको चैलेंज करते हैं, ये कहते हैं कि नो, ऐसा नहीं है, और देयर इज ओनली one God and one antithesis. One God means only God. और आप जानते हैं जैसे कि हिंदुइज्म में सनातन धर्म में है कि सनातन धर्म में ब्रह्म है, फर्स्ट लेवल इज ब्रह्म, एंड द सेकेंड लेवल इज इट्स त्रिगुणात्मक प्रकृति, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाउ ब्रह्म यू कैन कॉल बाय एनी नेम। आपके यहाँ इस्कॉन वाले उसको कृष्ण कहते हैं, आपके कौन से हैं ये दिस बैप्स वाले जो है उनको स्वामीनारायण, क्या बोलते? स्वामीनारायण बोलते हैं, और शैव जो है महाशिव बोलते हैं, वैष्णव जो है वो महाविष्णु बोलते हैं, आदि आदि, रामानंदी राम बोलते हैं। दैट इज वन ब्रह्म, एंड ऑल ऑफ देम हैव देयर त्रिगुणात्मक प्रकृति, the सत्व रज एंड तमस, सत्व रजस तमस, and that is Brahma, Vishnu, Mahesh. And the third level is the Devatas. And Devatas are what? Devatas are basically points of your consciousness within your brain. Those are the Devatas. तो ये 3 लेवल हो जाते हैं, और फिर चौथे लेवल पे you have the creation, and creation's finest is the human being. ये सनातन धर्म में ये है, यहाँ पर this is the hierarchy. Now in Abrahamic religions, this hierarchy ends at second from bottom. So you have only the human beings, and then you have what is called one deity. Now that they have reduced the supreme power to just a deity. ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से, कि इसी चीज को लेके झगड़ा होता है, और इसी चीज को लेके अल्टीमेटली द बैटल ऑफ 10 किंग्स होती है। ज़ोरोस्ट्रियंस लूज एंड दे मूव टू पर्शिया, and in Persia they create a religion in which there is this only God called Ahura Mazda, and there is a Satan that is called Ahirmanyu. So you have Ahura Mazda and Ahirmanyu. Now you can compare them with the biblical God and Satan, and you can the Quranic Allah and Shaitan. And similarly in Judaism, Yahweh and the Satan over there. अब इसको आप देखें यहाँ से कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट डे ऑफ जजमेंट है वो भी ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से ही आता है। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में और इनमें फर्क ये है कि ज़ोरोस्ट्रियनिज्म दे आल्सो गिव फाइनाइट टाइम। जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ फाइनाइट लीनियर टाइम, तो एब्राहमिज्म में फाइनाइट लीनियर टाइम है, और दिस फाइनाइट लीनियर टाइम they give certain scales. In Bible, of course, it's supposed to be I think 4004 BCE, and then they keep giving different dates on which the last day of judgment is supposed to occur, but it never occurs. In Zoroastrianism, they give a span of 10,000 years to the existence. The finite existence that you see is going to last 10,000 years. 10,000 साल का इसका पूरा जो है ये काल है, और इस 10,000 साल के भीतर जो आत्माएं हैं वो बॉडी टू बॉडी मूव करती हैं। नाउ दिस इज द डिफरेंस।
क्योंकि आपके एब्राहमिक रिलीजन में ऑफ कोर्स यू हैव ओनली वन लाइफ. यहाँ पे वन लाइफ नहीं है, यहाँ पे यू हैव सेवरल लाइफ्स, बट विद इन दोज 10,000 years, and then at the end of that 10,000 years you get what is called a last day of judgment, जो आखिरत कह लीजिए आप उसको, आर्मेगेडॉन, एपोकैलिप्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. तो ये आप देख सकते हैं कि हाउ इट इज लीडिंग, कहाँ जा रहा है ये. फिर इसके बाद आता है ये, इसी को ज़ोरोस्ट्रियंस के बाद में आपने खाली ये चैप्टर लिया है. देयर इज आल्सो अनदर चैप्टर, चैप्टर 15. चैप्टर 15 व्हिच शोज अखनातन्स, मितानी एंड हिटाइट्स. अब ये मितानी और हिटाइट्स जो थे, दीज वर वैदिक सिविलाइजेशंस सेंटर्ड इन प्रेजेंट डे Levant, that is Syria and Iraq, and Anatolia respectively. Hittites were in Anatolia and Mitannis were in Levant, that is Syria and Iraq. तो इसमें भी एक Akhenaten जो है, ये Akhenaten ने ओनली गॉड रिलीजन, ये इजिप्शियन फेराओ से निकला हुआ ये Akhenaten जो किंग था इजिप्ट का, he proposed this one god worship, and the one god was the sun god. तो यहां से भी इसका एलिमेंट मिलता है वन गॉड वर्शिप का और दी ओनली गॉड वर्शिप का, क्योंकि ओनली गॉड के साथ में यह है कि भाई उस वन गॉड वर्शिप इज फाइन. वन गॉड वर्शिप, देयर कैन बी वन सुप्रीम गॉड एंड देयर कैन बी सेवरल अदर डेटीज, लेकिन ओनली गॉड वर्शिप में यह है कि देयर इज ओनली वन डेटी. तो जैसा मैंने पहले कहा कि दे रिड्यूस द लेवल ऑफ द डेटी टू व्हाट वी हैव एज आवर पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. तो अब इसमें आप देखें कि इधर जो नबेटियंस है, नबेटियंस ने फिर इसमें क्या किया, जो नबेटियंस जो थे इनका जो एरिया है वो आजकल का जो पेट्रा है साउथ जॉर्डन में, तो पेट्रा वाज देयर सेंटर. और उनके जो है they basically used to be found between the Euphrates and the Red Sea. इसके अलावा जो मैंडियंस थे वो they were settled between the Euphrates, क्योंकि यूफ्रेटिस इज द सदर्न रिवर, एंड टाइग्रिस which is the northern river. इस एरिया में मोस्टली ये लोग थे. और जो मैंडियंस की एक होली बुक है गिंजा रब्बा, is very similar to the Quran in its language, in its verse patterns and intonations. Modern experts even consider the Quran to be a copy of the Ginza Rabba. Ginza Rabba आप देखना चाहें तो आप you can simply Google it and see. And those who know Arabic and who can recite the Quran, they can actually try and recite the Ginza Rabba, and you'll find that the language is also very similar. क्योंकि जो आपके जो नबेटियंस और मैंडियंस थे, particularly these Mandians were rooted more towards Damascus. तो मैंडियंस की जो लैंग्वेज थी वही लैंग्वेज कुरान की है, जो गिंजा रब्बा की लैंग्वेज है वही लैंग्वेज कुरान की है. इट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ सदर्न अरेबिया, क्योंकि जो मक्का है दैट इज इन सदर्न अरेबिया. ये सदर्न अरेबिया की लैंग्वेज ही नहीं है. कुरान की जो लैंग्वेज है वो पूरी तरह से मैंडियन गंजा रब्बा की लैंग्वेज बनती है. तो ये जो नबेटियंस थे, they had a supreme one god called Dushara, but they also had a lady female god Al-Uzza. They were located in Petra. Mandians were located in, they were also called Sabians. और ये सेबियंस मैंडिज्म जो था ये इसमें भी बाकी चीजें तो काफी सेम है. प्रॉफिट्स का था और जॉन द बैप्टिस्ट वाज रिगार्डेड एज द फाइनल प्रॉफिट. लेकिन इनके साथ में मैंडियंस के साथ भी ये था कि दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द लास्ट जजमेंट डे, द लास्ट डे ऑफ जजमेंट. इनके यहाँ री इनकारनेशन है. तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सारे आइडियाज आप पाते हैं एब्राहमिक रिलीजन्स में, वो एब्राहमिक रिलीजन्स के सारे आइडियाज जो हैं दे कैन ट्रेस्ड बैक टू these religions which were very frequent, which predated Islam.
in the Middle East. So that is the thrust of this chapter. That this is these are not revealed religion; these are evolved out of the Middle Eastern landmass itself. ये इसका आर्ग्यूमेंट है. एक्चुअली आपने बड़ा कंक्लूसिवली बताया कि देयर इज नथिंग ओरिजिनल देयर. अच्छा, इस पे बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा इधर, क्योंकि बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट्स भी हैं इस तरफ. अगर आपने इस पे रिसर्च किया, बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा इन फिलॉसफीज पे, क्योंकि बुद्धिज्म तो इनसे पहले आया है उस एरिया में. मतलब इन सब बुद्धिज्म का जो एरिया है वो बुद्धिज्म का एरिया इज नॉट ट्रेस्ड थ्रू द मिडल ईस्ट. बुद्धिज्म का एरिया जो है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अधिक है. बुद्धिज्म का जो एक्सटेंट है वो सेंट्रल एशिया में बहुत पाया जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इनफैक्ट महाभारत में भी अगर आप देखें तो महाभारत itself has references to उत्तर कुरु and उत्तर माद्र. So this उत्तर कुरु, what you have is उत्तर कुरु is basically today's Xinjiang and उत्तर माद्र is Central Asia. तो इसका रेफरेंस महाभारत में भी आता है और प्रोफेसर सुभाष काक has done a fair amount of research on this and he has traced and he has proved that these are areas that are mentioned in Mahabharata and they were actually populated by people who went out of India. तो उसका तो इसलिए जो बुद्धिज्म का एक्सटेंट है पूरा अफगानिस्तान जो है वो पूरा उसका एरिया है और सेंट्रल एशिया उसका एरिया है. But as far as Persia and Middle East is concerned, Middle East में you have Vedic people. In fact, the Zoroastrians are also post-Vedic people only. वो उसी से निकले हुए लोग हैं. तो ये जो वैदिक सिविलाइजेशंस हैं, they went to Persia and the Middle East. जो मैंने आपको बताया जो मितानी और हिटाइट्स हैं, वो तो प्योरली वैदिक सिविलाइजेशंस हैं. और वन ऑफ द एखनाटन जो इजिप्ट का जिसका मैंने नाम लिया हुआ है, एखनाटन का जो था वन ऑफ द वाइफ्स, उसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट वाइफ थी, शी वाज अ मितानी प्रिंसेस. तो ये इनके कनेक्शंस हैं. तो आई एम नॉट अवेयर, maybe there may be some, but I am not aware of Buddhist influence in the Middle East. I am aware of the Buddhist influence in Afghanistan and Central Asia. आपने सही बोला कि बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस बहुत दूर तक दिखता है सेंट्रल एशिया पे. हम और सीरिया में भी बहुत दिखता है. सीरिया में भी कुछ इन्फ्लुएंसेस वहाँ दिखते हैं, सीरिया में भी. अच्छा, मुझे ये जो वैसे तो पुराने जमाने में exchanges were so common that you would find influences everywhere, influences of each other everywhere. In fact, influences of the Indian dharmic practices you will find everywhere. Right up to Russia, right up to Baltic states, it can be found. हाँ, कल ही हम लोगों ने यूक्रेन में 12,000 साल पुराना स्वास्तिक का सिंबल हम लोगों ने बताया लोगों को कि दैट देयर स्वास्तिक वाज फाउंड ओवर देयर. इफ यू लुक एट द जो आज का जो हम लोग देखते हैं मॉडर्न बाउंड्रीज, तो नेशन स्टेट्स का बाउंड्रीज पे तो आपने काफी बात किया कि इट इज आर्टिफिशियल, इट इज क्रिएटेड बाय द कॉलोनियल पावर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट. तो उस चक्कर में डू यू थिंक दैट द रीजनलिज्म जो प्रोमिनेंट हो गया टू जस्ट डिवाइड देम, इराक ईरान का आर्टिफिशियल बाउंड्री है, लड़ते रहते हैं लेकिन साथ में वो एक ही लोग हैं, एक ही मतलब इंडिया पाकिस्तान के जैसा उनका हाल चलता है. एंड बट एट द सेम टाइम you see the friction in the local customs also there, or which gives rise to all the terrorism and other things also. तो ये जो yes, कुछ बोल रहे हैं. ये जो आप बता रहे हैं ना, इसको तो आई हैव ट्रेस्ड दिस इन दिस बुक. ये जिस तरह से यहाँ हुआ करता था बिफोर द इस्लामिक इन्वेजन, देयर यूज्ड टू बी what is called as Sasanian Empire and there used to be the Byzantine Empire. The Byzantine Empire was centered in Constantinople, which is Istanbul today. And this Sasanian Empire used to be out of Persia. इनके जो बाउंड्रीज थे वो बड़े फ्लूइड थे, वो बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते थे. जैसे ससेनियंस ने जूडिया पर भी कब्जा कर लिया था. अर्ली 7th century में ससेनियंस हैड ऑक्यूपाइड द जूडियन एरिया ऑल्सो. और
बाद में फिर बाइजेंटाइंस ने उनको पुश किया, और बाइजेंटाइंस और ससेनियंस जो है वो अर्ली सेवेंथ सेंचुरी में इतना लड़े आपस में, इतना लड़े कि दोनों एग्जॉस्ट हो गए। और दोनों क्या करते थे, दोनों ये जो अरब्स थे इनको मर्सनरीज की तरह यूज करते थे। तो धीरे धीरे अरब्स ने क्या किया कि वो फ्रॉम बीइंग मर्सनरीज दे सेड, दे थॉट कि भाई हम मर्सनरीज, हम दोनों लोग के लिए लड़ते हैं, तो हम खुद ही क्यों ना बन जाए। और उसके बाद दे टुक एडवांटेज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द ससेनियंस एंड बाइजेंटाइंस, आपस में लड़ते रहते थे ये। तो जो आप बाद में देखते हैं जो अरब कॉन्क्वेस्ट, वो अरब कॉन्क्वेस्ट हैपेंड व्हेन ससेनियंस एंड बाइजेंटाइंस हैड कंप्लीटली एग्जॉस्टेड देमसेल्व्स। और उसके बाद में आप देखेंगे कि दे मूव्ड इनटू दिस एरिया ऑफ इराक. Iraq largely today is completely Arab, whereas Iran is Persian. तो वो अरब इसलिए है कि वहां पर सबसे पहले इन्होंने जाकर कब्जा करने का, पहले दे मूव्ड इनटू, फर्स्ट दे मूव्ड इनटू द अरेबियन एरिया जो आज का सीरिया है, देन दे मूव्ड ईस्टवर्ड्स एंड टुक ओवर बगदाद. आपको पता ही है कि सबसे पहले जो इनकी जो एम्पायर बनी थी, जो पहले तो ये हैव द 4 Rashidun Caliphates. जो after the death of Muhammad, you have the 4 Rashidun Caliphates. Abu Bakr, the first 4 caliphs, Abu Bakr, Umar, Usman and Ali. और उसके बाद में फिर आप देखते हैं कि दी उमैयद एम्पायर. तो उमैयद एम्पायर वो सेंटर्ड इन डमस्कस, वो दमिश्क में थी, और वो आपके रही है करीब 90 साल. और राउंड अबाउट मिडल ऑफ द 8th century, द अब्बासिड्स, अब्बासी जिसको बोलते हैं, द अब्बासिड्स, they captured the empire and then they shifted their capital to Baghdad. उसके बाद बगदाद वहां की 1258 तक बगदाद थी, till the sack of Baghdad by the Mongols. और इस पीरियड में इन्होंने, उमैयद्स ने और अब्बासिड्स ने, इन्होंने अपना पूरा जो है ये एम्पायर फैलाया नॉर्थ अफ्रीका के थ्रू. नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट कैप्चर किया. इजिप्ट कैप्चर करने के बाद कार्थेज जो आज ट्यूनिशिया कहलाता है, वो फिर अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, they went into Spain also and they conquered most of Spain as well. Later on they were expelled from Spain. By the end of 15th century they were out of Spain. और इस तरफ से भी ये बाद में they moved even into Constantinople. Constantinople को conquer करके by the end of 13th century, then they went into Europe. और यूरोप में you have that famous battle of Vienna where they were defeated. और on the western front, Spain में also you have that the battle of Poitiers, जहाँ पे they were defeated. So that was the extent of maximum extent of Islam in Europe at that time. Then they were pushed back. फिर वहाँ पे the Osmanian Empire shrank gradually. 19th century में, I think 1826, there was a revolt in Greece and they were thrown out of there as well. तो इस तरह से इनका जो है ये एम्पायर बिल्डिंग रहा है. तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये आपके जो अरब्स जो इन्फ्लुएंस है, तो पर्शियंस का और अरब्स का जो कॉन्फ्लुएंस है वो इस तरह से घटता बढ़ता रहा, और फाइनली इट सेटल्ड into the boundary which we find largely what is today. ये इसका वो रहा है. पर्शिया को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था बाद में. तो पर्शिया को कैप्चर तो कर लिया, बट पर्शियन सिविलाइजेशन दे कुड नॉट फिनिश ऑफ. पर्शियंस बिकेम मुस्लिम्स very easily, didn't take them very long. 37 years. Yes. और उसके बाद फिर बाद में जब ये डिफीट कर दिया इनको मंगोल्स ने, तो मंगोल्स वेर व्हाट इज कॉल्ड अ टॉलरेंट पीपल.
तो उन्होंने इस्लाम को ख़त्म नहीं किया, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं किया, दे टॉलरेटेड इस्लाम, एज अ रिजल्ट देयर फोर्थ जनरेशन कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो आप जब वो मंगोल का जो वो किंग जो था उसने इस्लाम में कन्वर्ट किया, तो यू फाइंड सडनली देयर वर लार्ज स्केल कन्वर्जन एंड वेरी क्विक कन्वर्जन्स, और पूरा सेंट्रल एशिया कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सेंट्रल एशिया वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय मंगोल्स, द खान्स। खान। एक्चुअली मंगोलियन भाषा में भेड़ को कान बोलते हैं, जैसे कान, इफ दे टू कॉल अ भेड़, अ शीप, देखिए कान, तो अंग्रेजों ने उसको खान ही लिख दिया, सरनेम ही डाल दिया, जबकि जंगीज वाज नोन फ्रॉम द दैट कम्युनिटी, शेपर्ड। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, द मॉडर्न, ये जो यूरोपियन नेम्स हैं, लाइक वी आर सेइंग Sassanids, Abbasids, Scythian, Parthian, like they have taken the old names और उसपे एक eons या एक specific way में उसको nomenclature किया है, which has become the new historical language of the world also. How much that is misrepresenting these cultures? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं, हमारे लिए कुछ और तरीके से दिखता है ओरिजिनल कल्चर इनका। यहाँ पे अभी कुर्द भी हैं, यजीदी भी हैं, और यहाँ पे ये सब कम्युनिटीज भी हैं जो कि स्टिल फॉलोइंग द ओल्ड कल्चर। हाँ, तो ये तो यजीदी जो है वो तो बेसिकली जो वो मितानी एरिया है वो उसी से कोइंसाइड करते हैं। मितानीस का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो उसी से कोइंसाइड करते हैं। सो दे आर, according to me, they are the descendants of the Mitanis. And that is why you find so many Vedic civilizational practices that they still follow. और as far as the Western world is concerned, वो तो आपको पता ही है, वो तो सभी जगह वो अपने हिसाब से जो है सभी को मिसरिप्रेजेंट करते ही हैं। उन्होंने तो ग्रीक्स को भी मिसरिप्रेजेंट किया था, टिल दे फाउंड इट कन्वीनियंट कि वो ग्रीक्स को अपना एंसेस्टर बताएं, सो दैट दे कैन कैप्चर देयर नॉलेज which they had found that that knowledge that had come from India through Arab world, through Spain, and what they found in the library of Toledo when they reconquered Spain. तो लाइब्रेरी ऑफ टोलेडो के मैन्युस्क्रिप्ट्स को करीब 100 साल तक ट्रांसलेट करवाया पोप ने. That was the first library which they did not burn. And when they found that there was so much of knowledge there, they did not want to attribute it to India or to Arabs. So what they did was they said that, okay, all this comes from Greece. तो वो तो जहां भी जैसे भी कन्वीनियंट हुआ है उनको, वो तो उन्होंने किया ही है. आफ्टर ऑल, doctrine of discovery is not limited just to territory. The doctrine of discovery is also extended to knowledge as well as to human beings. So slavery is justified by the doctrine of discovery. All the knowledge is theirs by the very fact that they discovered it somehow. So they are not supposed to give any kind of what is called copyright concession to anybody. Whatever they have discovered is theirs, and whatever they have discovered is theirs, and for others they have to acknowledge the copyright. So सारा copyright उनका है. That of course is standard Western practice. हमारे यहाँ तो आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ तो knowledge was supposed to be given freely. तो हमने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं कि भाई ये नॉलेज जो है ये ले जाएंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर अपना कॉपीराइट लगा लेंगे और हमसे ही पैसा लेंगे उसका. यहाँ तो ये था ना कि भाई एक्चुअली अमेरिका में स्लेवरी एंडेड इन 1960. या आपके यहाँ पता है ना, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम. जिसको आप जितना खर्च करेंगे उतना वो बढ़ेगी. इसीलिए विद्या धन जो है वो सभी जितने भी धन है उनमें श्रेष्ठ है, क्योंकि ये खर्च करने से बढ़ती है. हमारा तो ये कॉन्सेप्ट था. तो वहां तो कॉन्सेप्ट दूसरा था कि जो हमारे पास नॉलेज है अगर कोई दूसरा उसको यूज करता है तो ही हैज टू पे. आपको पता है हमारे गुरुकुल में कोई पैसा नहीं लिया जाता था. गुरुकुल विद्यादान
Vidya was supposed to be a dhan, and the guru or the rishi or the gurukul was maintained by the community. The community used to maintain the guru, and the guru was a man of very, very frugal practices. आपको भी पता है, बस just to keep his body and soul together, and used to consider it as a very pious occupation to impart knowledge to others. वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पूरा इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, आपको पता ही है. पेटेंट किस लिए है? पेटेंट पहले होते थे क्या? आज क्यों पेटेंट डाले जाते हैं? इनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है एंड एवरीथिंग इज प्रीमियर. जो जो बोलते हैं ना, ओरिजिनल कास्ट सिस्टम इज द ब्रिटिश कास्ट सिस्टम. उन्होंने क्रिएट किया क्लास बेस्ड सोसाइटी, मोनार्की वर्सेस कॉमनर. और अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस है उसको भी हम देख सकते हैं कि 1788 में जब कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई हुआ तो उन्होंने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन को रिजेक्ट कर दिया और आर्टिकल्स ऑफ न्यू आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया और उसको उन्होंने फाइनल कॉपी बोल दिया. इसके बाद उसके कोई कॉपी नहीं है. और लास्ट अमेंडमेंट लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी, was to increase the salaries of the congressmen and the senators. That was the 27th amendment. वही है जिसके बाद तो that's the only law which is changed कि सैलरी वो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं. बस ये है. That's the last amendment. अच्छा, एक अब इसमें एक आज के टॉपिक पे क्वेश्चन आता है मेरा कि why do you think कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ, आपने ओरिजिन्स पे बात करी है, द मितानी हितानी, इफ यू आस्क एन इराकी, यहाँ पे बहुत इराकी अमेरिकन हैं, बहुत सारे उस एरिया से अमेरिकन हैं, उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है. दे आर नॉट टोल्ड, और अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स एंड वेस्टर्न टेक्स्ट बुक्स हैव नॉट फोकस. देखिए, वैसे तो हमने भी तो लार्जली व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज बेसिकली द practices or the religions that preceded the Middle East Islam. हमने क्रिश्चियनिटी के बारे में बात की नहीं ज़्यादा. लुक एट क्रिश्चियनिटी तो आप ये देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी ने भी बहुत सारी चीज़ें इसी में से निकाली. जैसे ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से बहुत सारी चीज़ें क्रिश्चियनिटी में गई. I'm not sure whether I don't think they had Mandians or Nabateans. वैसे Mandians तो जॉन द बैप्टिस्ट को अपना प्रॉफिट मानते थे लास्ट. तो they are almost contemporary to Christianity. लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो जूडाइज्म और ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का बड़ा क्यूरियस मिक्सचर है. और उसमें भी वो इनिशियल जो है उसके जो आप देखेंगे दी डार्क ईरा जो है उनकी, जो that starts with the conversion of Constantine. कैसे खूबसूरती से उन्होंने, जैसे मैंने आपको इस्लाम को बताया कि कैसे इस्लाम ने मंगोल किंग को कन्वर्ट कर लिया, उसी तरह से यहाँ क्रिश्चियन ने रोमन किंग को कन्वर्ट कर लिया. डेथ बेड पे. वन सेक, सॉरी. अंतिम समय एकदम लास्ट में. हाँ, उसको कन्वर्ट करके और फिर वो दूसरों को फिर जो है, और वही वाली प्रॉब्लम थी वहां पे भी कि जो पेगन्स थे, यानी जो ओरिजिनल रोमन्स थे, दे वर टॉलरेंट. They did not persecute these new practitioners. Practitioners of new religions were not persecuted. So as a result, when they got into power, जब कॉन्स्टेंटाइन को उन्होंने कन्वर्ट किया तो उस समय तो वो माइनर रिलीजन थे, they were about 10-12%, और उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन को कन्वर्ट कर लिया. ये तो उसी तरह से बात है कि हमारी सोनिया माता जो थी वो भारत को कन्वर्ट करना चाहती थी. मैं तो आई फाइंड सो मेनी पैरेलल. ये जिस प्रकार से सोनिया वाज प्लांटेड इनटू इंडिया एंड ऑल हर एक्टिविटीज टुवर्ड्स क्रिश्चियनाइजिंग इंडिया, that is a very famous parallel to how the Christians married their most beautiful girl to Constantine,
and through her they managed to convert Constantine. तो इसी तरह की चीज यहाँ भी ट्राई हुई है, आपको दिख रहा है। और तो खैर बहुत सारी और भी थियरीज कही जाती हैं, वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट ओपनली, अदरवाइज वी विल गेट स्लैप्ड विद डेफेमेशन केसेस, बट these are very curious coincidences that we can see. Or once Constantine was converted and Christianity was made official state religion, उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से धीरे धीरे by the time of Theodosius, I think in probably 380 or so, around that time, they banned all other religions. Within 50, 60 years, they banned all other religions and persecuted them. Absolutely. तो आप देखते हैं ना कि ये किस तरह से ये सब होता है. I mean, Europe is the first case of mass banning of religions, ideas. आज भी करते हैं, आज भी वो फ्रीली दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं ह्यूमन राइट्स का, दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं सेक्युलरिज्म का, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे चर्च के अलावा कुछ है नहीं. एनीवन हु ट्राइज टू ग्रो, हंगरी का एक क्लासिकल एग्जांपल है कि जहाँ पे अपने हिंदू लोगों का कम्युनिटी बना था एंड दे रिमूव द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एंटायर कम्युनिटी. आज भी कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट वर्सेस रशिया का, इट इज अ सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट. ट्रू. It is a sectarian conflict of this Western Christianity, the Protestant and Catholics, versus Orthodox Christianity. So it is not a mere coincidence. ये पूरा का पूरा एक practiced routine है. ऐसा practiced routine है which we are now understanding, or rather we are beginning to understand only now. And that is making them very uncomfortable. That is why you remember in the olden times, all these talks were forbidden. And now again, in the wokist America, again they are trying to put a lid on all these talks. Absolutely, absolutely. I mean, लोगों को फ्री स्पीच के बारे में अगर लोग गलत फहमी रहती है तो आई मस्ट टेल देम कि अमेरिका वापस वो आप खुल के बात नहीं कर सकते. यू कैन बी शट डाउन फॉर मेनी रीजंस, मेनी रीजंस. यूरोप में का आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम द टॉपिक टुडे. सो अगर हम यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में जितना भी फिलॉसफीज है वो इसी रीजन से आया है. ये नबातियन, ज़ोरास्ट्रियन, यही फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं. और most of the times they have tried to absorb them into the church also. So stoicism और जो भी आप वर्ड्स हम लोग बड़ा केयरलेसली यूज करते हैं, बट दीज आर ऑल syncretism, ये सब वर्ड्स रिलीजियस टर्म्स हैं, इनके थियोलॉजी स्कूल के टर्म्स हैं सारे के सारे. सो डोंट यू थिंक दिस लैंग्वेज, जो भाषा है उनकी, it introduces arguments, conflicting arguments to confuse the people who follow these cultures. At the same time, उनको फोर्स भी करते हैं कि आप इनकी तरफ मूव कर जाएं. How does the language play the role? देखिए वो तो लैंग्वेज जो है, जो वो बेसिक लॉजिक जो उनका फॉलो होता है ना, अगेन दिस इज अ फुल चैप्टर ऑन लॉजिक इन दिस बुक, आपने पढ़ा होगा. The Western logic or the Christian logic that pervades all the Abrahamic beliefs is a two-valued logic, yes and no. Whatever is written in the book is correct, whatever is not in the book is wrong. It's not even that whatever is forbidden in the book is wrong. Whatever is not in the book is wrong. That is the basic logic. Two-valued logic, yes and no. हमारा जब बुक ने कह दिया वो सही है, और जो बुक नहीं कहा वो गलत है. इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता ना. दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव लॉजिक. इन ईस्टर्न कल्चर्स दैट लॉजिक इज वेरी एडवांस्ड. हमारे यहाँ तो इट्स नॉट व्हाइट एंड ब्लैक, ऑलवेज व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे मिनिमम. अदरवाइज द मोस्ट कॉमन लॉजिक across Buddhism and Hinduism and Jainism is four-valued logic. उसके किताब में बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है इसमें. तो
वो जो बोलेंगे वो तो हमेशा 2 शेड्स में ही देखेंगे चीजों को और 2 शेड्स में ही बोलेंगे। तो इसलिए हमें ये समझना आवश्यक है कि उनका जो लॉजिक है वो हमें अप्लाई क्यों नहीं करता है, और कितना कंफ्यूजन जो वो कहते हैं और हम जो समझते हैं इतना कंफ्यूजन क्यों होता है। वो इसीलिए होता है कि हमारे बेसिक लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी, हमारे प्रमाण शास्त्र अलग है। वी वैल्यू व्हाट इज कॉल्ड द एम्पिरिकल एविडेंस। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे यहाँ हाईएस्ट प्रमाण माना जाता है सभी कल्चर्स में। ये तो मैं कई बार कहता रहता हूँ ना, आपके देखिए गीता का श्लोक है 2.46, यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्या अर्थ है इसका? ये अर्थ है कि आपने यदि सीधे आपने ईश्वर का अनुभव कर लिया है तो आपको वेदों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट अनुभव कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट अलाउड, यू हैव टू गो थ्रू क्राइस्ट। Similarly, in Islam, you have to go through prophet and the book. Direct it is not allowed. Direct अगर आप कोशिश करेंगे तो you would be committing blasphemy. तो हमारे यहाँ कल्चर्स भगवान अलग हैं, ये बिल्कुल अलग कल्चर्स हैं। इसलिए कल्चर्स अलग हैं क्योंकि इनका टाइम कॉन्सेप्ट अलग है। ये तो सारे लास्ट जजमेंट डे वाले कल्चर्स है ना। फाइनाइट टाइम, वी आर इनफाइनाइट टाइम कल्चर्स, दीज आर फाइनाइट टाइम कल्चर्स। तो जो इनफाइनाइट टाइम कल्चर होगा उनका जो वर्ल्ड व्यू और आउटलुक होगा वो फाइनाइट टाइम कल्चर से बिल्कुल अलग होगा ही होगा। जी एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा इसमें पॉइंट रखा। मेरा उसमें एक ही रहेगा, फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं लोगों के। बहुत पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। ये जो एलियन का थ्योरी है, एलियंस, तो आप कोई भी पुराने कल्चर्स देखेंगे, नबातियन और जोरास्ट्रियंस और मंडियन, इनके बहुत सारे रॉक कार्विंग्स हैं इनकी जगह पे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पे ये हमेशा वर्णन करते हैं कहीं और से कोई आया है इनको ज्ञान देने के लिए। एंड मेनी ऑफ दोज थिंग्स एक्चुअली कनेक्ट विद सनातन धर्म कल्चर, देवी देवता कल्चर से। मिथ्रा से बहुत कनेक्ट करता है, इंद्र से बहुत कनेक्ट करता है। एक राजा ने बबर शेर पकड़ लिया, वो भरत महाराज की बहुत पॉपुलर कहानी है। ऐसी बहुत सारे राजाओं की कहानी है जिन्होंने बबर शेर पकड़ा। सो डू यू, और इसको वेस्टर्न साइंस से बोला है एलियन कल्चर्स। सुमेरियंस वर एलियंस, मेसोपोटामियंस वर एलियंस, एंड वी ऑल नो द अंडरस्टैंड द रीजन आल्सो व्हाई दे कॉल इट एलियंस, सो दैट लोग इनकी बुक पे वापस जाए। सो सो डोंट यू थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग, commentary, western commentary has harmed these native cultures or people from following these native cultures? देखिए वो तो फिर मैं वहीं जाऊंगा, जो इनका उनका जो लॉजिक है ना कि जो उनका है वही सही है, बाकी सब गलत है। तो वो तो उसी तरह से देखते हैं ना, उसको उसी तरह से पेंट करते हैं। दे आर नॉट ओपन एंड इंक्लूसिव कल्चर्स, दे आर क्लोज्ड कल्चर्स बेसिकली। ये तो रेनेसांस वगैरह के बाद में है और जो साइंटिफिक आउटलुक आया है उसके बाद में ये सब चीजें हुई हैं। वैसे तो साइंस इज टोटली अगेंस्ट चर्च। चर्च ने कब साइंस को परमिट किया? Yes. वो तो चूंकि एक यूटिलिटेरियन एक कल्चर वहां डेवलप हो गया। प्रोटेस्टेंटिज्म में एक आपका उनका वो एक प्रोटेस्टेंट एथिक आ गया, एथिक ऑफ कॉलिंग, जिसमें ये है कि भाई यू कैन बी रिवॉर्डेड इन दिस लाइफ इटसेल्फ। ये प्रोटेस्टेंटिज्म में है ना, यू कैन अर्न योर रिवॉर्ड थ्रू हार्ड वर्क इवन इन दिस लाइफ। उसी से तो कैपिटलिज्म आया। उसके पहले तो कहाँ था? उसके पहले तो ये सीधा सीधा था कि भाई आपको तो इस जन्म में कुछ मिल ही नहीं सकता, जो कुछ भी मिलेगा यू विल गेट इट इन द हियर आफ्टर। बिकॉज ऑफ दैट, because of that, you always had this problem there. चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। एक मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये क्वेश्चन का जवाब बहुत लोगों को लगता है। कुमार राम पूछते हैं, प्लीज क्लैरिफाई वेदर अब्राहमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ए प्लस ब्राह्मिक।
I am not much into etymology. मैं इसमें जो है वो this is what called superficialism. इससे क्या फर्क पड़ता है वो ये उसको जो है इस तरह से किया या उस तरह से किया. We have to look at the look at the basics. अब Characteristics, जब yes. बेसिक में जाएंगे आप तो पाएंगे कि it has nothing to do with Brahma at all. Then you call it Abrahm or you don't call it. It doesn't matter. Actually, most of the Brahmic cults में एक ये comment आया है, एक है comment है. Have you seen, अभिषेक हमारी पूछ रहे हैं, have you seen Caesar's Messiah? No. Caesar's Messiah. ये जो Messiah syndrome है, that is a very problematic syndrome, क्योंकि वहां पे आप responsibility किसी दूसरे को दे रहे हैं बार बार. वो basically that is what is prophetism, no? Thank you राजीव मित्तल जी. Yes, thank you. अपने चैनल पे सभी लोग कम बोल पाते हैं. कोई अपने चैनल पे होगा तो संजय जी भी अपने चैनल पे कम बोल पाते हैं. I'm mostly interviewing others. Correct. So यहाँ पे when I'm interviewing others and I myself keep speaking, फिर तो गेस्ट आएंगे नहीं ना मेरे पास फिर. करेक्ट. तो यहाँ पे उनको चांस मिला, यहाँ पे वो अपने, बिकॉज ही इज वेरी वेरी नॉलेजेबल. उनकी बुक्स आप पढ़िए, बहुत सारी बुक्स है उनकी. कृष्णा योगेश्वर सीरीज आप देखिए. पार्थ जी थैंक यू. और अगर आपके पास करंट क्वेश्चन है तो कोई पूछिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन आज के टॉपिक पर ही पूछिए. एंड ब्रह्म, ये कमेंट आया है बुलडोजर का, में रियल स्टोन्स. ये एक्चुअली सारा बिल्कुल सही बोला. मैं भी संजय जी से एग्री करता हूँ कि you can use etymology for certain extent. Beyond that, to derive a meaning. Why do you have to go into etymology? Why don't you look at the substance? Yeah. Don't look at the form, look at the substance. Exactly. And when you look at the substance, then the distinction between dharma and adharma becomes very clear. That's why when people say sarva dharma samabhav, I said, okay, sarva dharma samabhav is very fine, but do not confuse it with dharma adharma samabhav. Actually क्या है कि most of the people, ये आज का टॉपिक ऐसा है कि लोगों के अंदर क्वेश्चंस भी नहीं है. फर्स्ट टाइम दे आर हियरिंग. बट लेट मी टेल द ऑडियंस कि दीज आर द हिस्टोरिकल पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप यू विल बी टॉकिंग इन ब्लाइंड अबाउट दीज कल्चर्स. तो एक मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है फिर इसमें, लास्ट क्वेश्चन, कि ये अभी हम लोगों को इनका इतिहास पता लग रहा है कि नबातीन कौन है, ये ज़ोरास्ट्रियंस कौन है. व्हाट कैन Indian education system can do to cultivate more education and also proactive foreign policy to protect these people in the name of global south or whatever it is? The Indian education system's been completely subordinated to Western logic. We have to go back to our own Nyaya Shastra, our own Vaisheshik Sutras. Our traditions of Nyaya and Vaisheshik have been completely lost. Our tradition of Vedangas have been lost. So these are something that these are not just teachings. These are, I should say, these are very fine tools to training your mental faculties. If you are educated in Vedangas, if you are educated in Nyaya and Vaisheshik, and you know the fine distinctions, then you can do very, very fine analysis. Then you can actually do debates. If you look at the debates and how the debates used to be conducted in the past, there used to be a code of debates. Debates did not used to be like Arnab Goswami on at 9 p.m. where people are shouting at each other and everybody wants to get his own word in and his own version in. See, there were 5 elements of debate. Vishay, Vismaya, Purva Paksha. Vishaya, Vismaya, Purva Paksha, Siddhanta. And then Sangati. So if you wanted to do a debate, then you had to first introduce a subject,
Both sides had to introduce their subject. Then they both had to indicate what are the points that interest them, or points where they find that the other person's viewpoint is confusing or whatever. So Vishaya Vismay, then Purva Paksha was so important that in a debate, you first had to state what you had understood about the other's point of view. If you could not state what you had understood the other's point of view, then you would not be qualified to debate. And only the fourth stage you could put forward your point. And then on the fifth stage, you had to find some kind of what is called a reconciliation. That was the object of debate. Debate was to extract knowledge. That was the purpose of debate. But today's debate is only to score points. See, एक रुद्र का क्वेश्चन आया है कि वी शुड स्टार्ट आवर ओन गुरुकुल सिस्टम. भारत में इतने सारे गुरुकुल हैं, कौन भेजता है अपने बच्चों को उधर? सो इट इज वेरी डिफरेंट राइट नाउ एंड मेनी पीपल आर ट्राइंग आल्सो. लेकिन मैं स्वयं भी गुरुकुल से हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ से whether it is possible or not. लेकिन आज के लिए हाइब्रिड सिस्टम चलेगा, हाइब्रिड सिस्टम, you know, which will make it very well. Yes, yes. इसमें आपको कोई Hybrid point system is working very well in places. very well. मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जो टूल्स ऑफ ट्रेनिंग और मेंटल फैकल्टीज हैं उनको यूज कीजिए, अपने आप गुरुकुल सिस्टम हो जाएगा. और संजय जी, हम लोगों ने अमेरिका में वीकेंड गुरुकुलम शुरू किया है, सैटरडे संडे गुरुकुल. तो चिल्ड्रन कैन डू द रेगुलर एजुकेशन और वीकेंड में लोग गेट द रामायण महाभारत एंड मेथोडिकल एजुकेशन, न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र, and then proceed, not just श्लोका recitation and get out. उसके बाद क्या होता है कि बच्चे 10 साल की उम्र तक श्लोका भूल जाते हैं and they forget everything. It doesn't become part of the culture. So संजय जी, thank you so much for coming on the show. और आप बैठे, आपका वेडनेसडे ऑफ होता है तो कभी आए इधर आप, and you normally are recording and other things. If you want to add something in today's discussion which I forgot to ask. What I want to add is that people who are watching this, and we have gone straight to chapter 14. But before you go to chapter 14, if you want to fully understand, then you have to read this book, and especially the first 8 chapters. Because the first 8 chapters, they define the basic differences. The differences are laid out in 8 reference points. There are 8 reference points there, the comparison. And they are different frameworks, different ways of interpretation, then different attitudes to the scientific method, different time concepts, different logic concepts, different epistemology or the concept of proof, different cosmology, and different eschatology, the death concepts. So once you go through these differences, then you would be able to appreciate everything absolutely clearly. It will be clear to you like daylight. सो दर्शकों को अमेजोन पे बुक अवेलेबल है और साथ में आप लोग देख सकते हैं गरुड़ा प्रकाशन पे. यू कैन सर्च हिज नेम, यू कैन गेट दैट बुक ऑर्डर फ्रॉम देयर आल्सो. एंड गरुड़ा प्रकाशन यूएस में भी डायरेक्टली डिलीवर करता है, सो यू कैन चेक इट आउट देयर. और अगर कोई दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, Amazon.com पर भी अवेलेबल है. It's available on Amazon.com in the US and Canada. तो फिर And it's ऑस्ट्रेलिया में भी available also on Amazon.co.uk. हाँ, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल होगी फिर तो. ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल. It's available everywhere. Yes. On the Kindle version is available globally. You can read on Kindle also. Kindle's not yet launched. It was supposed to be launched any day. Let me check that it has been launched. I don't think it has been launched yet. Kindle version. संजय जी, मैं बुलडोजर का एक पॉइंट लेता हूँ, आप तो ढूंढ रहे हैं. तो our people are defending. Yes, Kindle version launched. Kindle version is also there. It's Even easy for launched. people. Yes. It's launched. Great. Congratulations. और Kindle version भी पढ़ सकते हैं लोग.
and it is easier for people to get on one tablet many books, so it is good actually. Our people are defeating asurs in YouTube debates like heated debates. मेरा आपसे बस ये आग्रह है, जमीन पर उतरिए. YouTube is just for initial information sharing, for knowledge sharing, लेकिन you need to act on the ground too. You know, or when you do on the ground, then you see the results also. Sattology के बहुत सारे हमारे programs चलते हैं on the ground, and we are on the ground most of the cities in the US. तो हम लोग almost 600 campuses में हैं on the ground. तो what is your view on this point actually, Sanjay ji? Our people are defeating asurs in YouTube debates like heated debates. I doubt. You may be feeling very happy that you defeated them. Unless they accept defeat, it's not a defeat. And in a heated debate, nobody accepts defeat. Getting views is not actually, views is a totally different ball game altogether. मतलब जमीन पे उतरना जरूरी है. तो थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल द व्यूअर्स, आप लोगों के अच्छे क्वेश्चंस थे, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग Sattology. जयपुर डायलॉग्स भी देखिए, जयपुर डायलॉग्स में बहुत से डिस्कशंस होते हैं जो हम लोग नहीं कवर कर पाते हैं, एंड यू शुड कनेक्ट विद संजय जी ऑल्सो एंड हिज टीम विच इज डूइंग वंडरफुल वर्क. और हमारे Sattology इंटरनेशनल लिट फेस्ट में भी ज्वाइन करिए, और मैं पब्लिक इन्विटेशन दे रहा हूँ संजय दीक्षित जी को, इस बार अगस्त 24-25 को अमेरिका आए और हमारे लिट फेस्ट में भी पार्टिसिपेट करें, जो कि दिस इज द 4th ईयर रनिंग, सो 5th ईयर सॉरी, एंड इट हैज ग्रोन स्टडीली. और मैं चाहता हूँ कि इंडियन ऑथर्स स्पेशली संजय दीक्षित जी आए और खुल के बात रखें. ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम इन फ्रंट ऑफ अमेरिकन्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ अमेरिकन्स. इट्स इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल. थैंक यू ऑल वेरी मच, एंड आप सबका बहुत धन्यवाद. नमस्ते Thank एंड you, नमस्ते Adityajit. इन द नेक्स्ट शो. Thank यस, you, Aditya ji. थैंक यू. Namaskar. नमस्ते.